Hello students, today in this chapter current electricity, first of all we will discuss definition of electric current. Okay student, electric current can be expressed as the amount of charge flowing through a cross sectional area of the conductor per unit time. It means an electric current is the rate of flow of electric charges. Students, if q charge flows through the cross section of a conductor in time t, then charge I equals q by t. Current equals charge upon time. Okay, and this current is a scalar quantity. Okay, this current is a scalar quantity. Now, if an electron पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, अगर किसी कंडक्टर से एन इलेक्ट्रॉन्स अगर पास कर रहा है तो जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज पास्ड क्यू इक्वल्स एन ई. ओके, अगर किसी कंडक्टर से, ओके दिस इज अ कंडक्टर, अगर एन इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू इक्वल्स एन ई. And we have definition of current, I equals q by t, q by t. So we can write n e upon t. Okay, we have relation between I, q and t. I equals q by t, and since q equals n e, then we can write I equals n e by t. Okay, n e by t. Now what is direction of current? Okay students, suppose that this is a wire, this is a conductor, this is A terminal and this is B terminal. Now if current flows through A to B, it means the direction of current will be B to A. Okay, अगर किसी कंडक्टर में चार्ज A to B फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में, जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ current? We have formula I equals q by t, rate of flow of charge. Okay, since unit of charge is coulomb, okay, unit of charge is coulomb and unit of time is second. In SI system, unit of charge is coulomb and unit of time is second. So coulomb per second is SI unit of electric current. Okay, and this coulomb per second is also known as एम्पियर. जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कोलम पर सेकेंड, जिसको आप एम्पियर भी कहोगे. एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए. ओके, नाउ अब हम बात करें यहाँ पे एक डेफिनेशन जो बहुत कॉमन है. सम डेफिनेशंस लाइक 1 जूल, 1 न्यूटन, ओके, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट. ठीक है, इसी तरीके से 1 एम्पियर के बारे में देखते हैं. व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर मीन्स इफ वी हैव फार्मूला I equals q by t. Okay, if the value of q is 1 coulomb and the value of time is 1 second, then we have I equals 1 coulomb per second and this is known as 1 ampere. फार्मूला क्या है, I equals q by t. अगर हम किसी कंडक्टर में, ओके, अगर हम किसी कंडक्टर में, सपोज दिस इज योर कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में जो चार्ज है वो 1 कोलम का चार्ज अगर फ्लो कराते हैं
तो जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो कितने का होगा, वो होगा ऑफ 1 एम्पियर। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। Definition of 1 ampere will be 1 ampere, the current is 1 ampere if the rate of flow of charge is 1 coulomb per second। ओके, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कोलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितने का होगा, वो 1 एम्पियर का होगा। नाउ वी हैव सम रिलेशन बिटवीन स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट like 1 milliampere equals 10 to the power minus 3 ampere, 1 microampere equals 10 to the power minus 10 ampere। Now we will discuss about symbols used in electric circuit diagram। okay, symbols used in circuit diagram, कुछ symbols पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ सर्किट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, लाइक दिस इज रियोस्टेट, दिस इज अमीटर, गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, सो व्हाट विल बी सिंबल एंड यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जितने भी आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सब का यूज क्या होगा, इन सब का सर्किट जो होगा वो सिंबल्स क्या क्या होंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस इज सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प और लोड। दिस इज सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज सिंबल फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज रियोस्टेट, this is symbol for a meter। okay, this is symbol for voltmeter, this is symbol for key। okay, now connecting wires, and this is symbol for battery। battery is collection of 2 or more than 2 cells, and symbol for open switch, voltmeter, ground, fixed resistance, tapping key, galvanometer, AC source, etc। okay, now we will discuss first of all load। Students, load is an arrangement across which the output is obtained। okay, लोड का सिंबल क्या होगा, क्या था, कुछ इस टाइप का ना। ओके, नेक्स्ट connecting wires। these are thick wires made of highly conducting metals such as copper or aluminum। they are used for connecting the various components of a circuit। connecting wires का यूज़ जो है वो अलग अलग सर्किट को कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ओके, कनेक्टिंग वायर्स का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ओके, दिस इज symbol for connecting wires। next, cell is an arrangement which converts chemical energy into electrical energy। okay, cell का क्या symbol होगा, this is positive terminal and this is negative terminal। okay, next, symbols for battery। बैटरी का सिंबल क्या होगा, बैटरी इज कलेक्शन ऑफ combination of two or more than two cells। okay, battery is collection of combination of 2 or more than 2 cells। okay, जब भी
एक सिंगल सेल होगा तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा. ओके, दिस इज सिंबल फॉर सेल एंड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स known as battery. ओके, रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा. ओके, और अगर आप वेरिएबल, ये एक तरह का फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन अगर ये वेरिएबल्स की बात करेंगे तो आप एक एरो के थ्रू दिखा सकते हो. ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो गया. ओके, नेक्स्ट ओपन स्विच. इट इज़ एन अरेंजमेंट टू स्विच ऑन और ऑफ द सर्किट. स्विच क्या है, ये सर्किट को ऑफ या ऑन करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें आपको 3 अलग अलग तरीके के स्विच देखे जा सकते हैं. ओके, दिस इज टैपिंग, दिस इज टैपिंग की. ओके, दिस इज की एंड दिस इज स्विच. ओके, this is plug key, this is plug key and this is tapping and this is switch, open switch. Now ammeter. Ammeter is a device which measure the electric current in the circuit. अब मीटर का सिंबल क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा. इसी तरीके से वोल्ट मीटर का भी सिंबल होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, बस उसमें आपको V दिखाना होगा. एंड वोल्ट मीटर इज एन अरेंजमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स इन अ सर्किट आर अ पार्ट ऑफ अ सर्किट. ओके, सर्किट में पोटेंशियल मेजर करने के लिए मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर और करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करेंगे. ओके, गैल्वेनोमीटर. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे. ये भी वोल्ट मीटर और अमीटर की तरह ही होगा, बस इसमें इसके जगह पे आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, लाइक अमीटर में आपको A, वोल्ट मीटर में आपको V और गैल्वेनोमीटर में आपको G शो करना होगा. ओके, नेक्स्ट AC सोर्स. सिंबल ऑफ AC सोर्स विल बी लाइक दिस. ओके, आपको अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर की तरह आपको एक सर्कल बनाकर आपको कुछ ऐसा बनाना होगा. इसमें एक साइन वेव का सिंबल बनाना होगा. दिस इज AC सोर्स. ओके, so these are some symbols used in circuit diagram. Now insulator and conductors. Students, the substance which do not allow the current to flow through them are called insulator. सब्सटेंस जिनसे करंट फ्लो करता है, इजीली फ्लो करेगा, वो क्या होगा, वो कंडक्टर्स होगा. और अगर इजीली फ्लो नहीं करता है तो वो इंसुलेटर होगा, मीन्स नॉन कंडक्टर. ओके, कंडक्टर मीन्स द सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देम इजली. आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिसमें करंट इजीली पास कर सकता है तो वो कंडक्टर्स होगा, और अगर करंट इजीली पास नहीं करता है तो वो इंसुलेटर होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर: वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, लेदर, etc. And examples of conductors: all metals such as copper, aluminium, silver, iron, brass, etc. Silver is best conductors. Okay, now closed and open circuit. Students, what is closed and
open circuit. First of all, what is open circuit? A circuit is said to be open if no current flows through the circuit. अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओके, a circuit is said to be open if no current flows through the circuit. The resistance of such a circuit is infinite. This happens if the key in the circuit is not plugged. अगर किसी सर्किट में प्लग्ड नहीं है, की प्लग्ड नहीं है, मतलब ऑन नहीं है, तो फिर वो ओपन है और ओपन है. इन दिस केस नो करेंट फ्लोज थ्रू देम. सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा. ओके, बट इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्किट, a circuit is said to be closed if current passes through the circuit. अगर करंट पास कर रहा है थ्रू सर्किट, तो वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ सर्किट इज फाइनाइट. ओके, एंड द सर्किट इज कंप्लीट. If circuit is completed means if circuit is closed, in this case the bulb glows. जो भी बल्ब अटैच होगा, कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, वो ग्लो कर जाएगा. तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, ओपन में क्या होगा कि अगर करंट फ्लो नहीं करता है तो वो सर्किट ओपन सर्किट कहा जाएगा, क्योंकि उसमें स्विच जो होगा वो ऑफ होगा. बट इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्किट, जो करंट होगा वो इजीली फ्लो करेगा, जो भी उससे अटैच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो परफॉर्म करेंगे. और इस केस में जो सर्किट होगा वो क्लोज्ड होगा, क्योंकि जो स्विच होगा वो ऑन होगा, वो इन होगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. स्टूडेंट, इफ वर्क डन W dash is done in bringing a charge q from infinity to a point, then potential at that point is V equals W dash upon q. अगर किसी चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point is known as electric potential. Okay, and formula for electric potential will be V equals W by Q. Okay, potential is a scalar quantity. Now unit of W is work joule and unit of Q is coulomb. Okay, so joule per coulomb is unit of potential and it is known as volt. Okay, now the potential difference between two conductors is equal to the work done in transferring a unit positive charge from one conductor to another conductor. अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाना होगा, एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसमें जो भी वर्क डन करना होगा, यही क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ओके, इफ वर्क W इज डन इन ट्रांसफरिंग अ टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V1 माइनस VQ, V1 माइनस V2 इक्वल्स W बाई Q. पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी and unit will be same, joule per coulomb and also known as 1 volt. Okay, now what is definition of 1 volt? Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work done in transferring 1 coulomb of charge from one point to another is 1 joule. अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन कर रहा है वो इन टाइम 1 सेकेंड 1 जूल का वर्क डन अगर करना पड़ रहा है, सॉरी 1 कोलम का चार्ज अगर
लाने में जो वर्क डन 1 जूल का करना पड़ रहा है, तो उस बात करें उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितने का होगा, वो हाफ 1 वोल्ट होगा। सो 1 वोल्ट इज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ कोलम 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 1 जूल। ओके।